cryptography. Basically, every transaction is basically coded so that it is difficult to break apart. Yeah, please next. Now, as I told you, money has come because the disadvantage of the barter system. Simply, cryptocurrency address the disadvantages of the monetary systems. Now, cryptocurrency can be indefinitely divisible. In case of Bitcoin, you can pay in 0.0001 Bitcoin also. There are negligible or zero transaction charges are there. Yeah, I will cover another aspect when you are trading through a crypto exchange. That is a different aspect, but I am only talking about the personal transfer. There is no transfer or transaction charges. Now, since it is based on the cryptocurrency and it is based on one person can transfer to another person, even in any locality, there is universally acceptance. It can be accepted in India as well as it can be accepted in US or any other country, and there are zero conversion charges because you are paying in Bitcoin itself. You don't have to convert into any other currency. Now, another thing is counterfeiting of currency is not possible because of the distributed ledger and cryptocurrency. Counterfeiting or introduction of new Bitcoin in system other than by the system is not possible. Now, immune to devaluation of currency. I told you that in case of currency, it can be devalued over the period of time because of inflation. The beauty of Bitcoin and various other cryptocurrency are they are fixed in numbers. After a certain numbers has been introduced in system, there will no more Bitcoin will be introduced in the system. So the makers of Bitcoin, they have assumed that this will be the currency will not be devalued over the time, because what central bank does, it can issue indefinite amount of currency. So more the currency, it will devalue the currency basically. It will decrease the value of the currency. Another important aspect is anonymity. Now, anonymity can be described in two particular ways. If you are trading through an exchange or you are trading through a personal trading. Whatever I'm telling, I will be later part, it is all again described, because anonymity, one of the issues which has to be addressed. Basically, transferring of Bitcoin can also be anonymous. You cannot know to whom it is transferred and who has transferred. That is one of the concerns which we will discuss later on. Secure, of course it is secure because of the introduction of cryptography. Yeah, please next. Most of the things, this is I have discussed already. This is basically this is about the Bitcoin. What we have discussed is the cryptocurrency. Bitcoin is the earliest form of cryptocurrency. In fact, it is the first cryptocurrency which was introduced in the system basically in early 2009. It was basically invented by a person or group of person called Satoshi Nakamoto. So I think nothing much to discuss here. Only the facts are there. Yeah, please forward. I have told you one of the important points is this. I will discuss when we will discuss how you can acquire Bitcoin in the system basically. One of the beauty of the system, I have told you that there is fixed number of Bitcoin which will be introduced in the system. That is the 21 million Bitcoins are existence which are to be mined, and it is believed that in year 2140 there will be no more Bitcoin will be likely to be mined. Yeah, please next. These are some of the Bitcoin statistics only. This is again a fact. But you will see there are some interesting factors there. The current market price, it is actually 2-3 days market price is around $42,000 is equal to 1 Bitcoin. But you see the price fluctuation. In 2021 itself, there is so much price fluctuation over there. February May it has breached 40,000. Mid-April May it has breached 60,000. July May it has fall below 30,000. It was around something 29 something thousand. November May it has breached again 65,000, and now it is
around 40,000. So there is a very high price fluctuations are there. Yeah, please next. Now this is the one of the important part. How do you acquire Bitcoin? So basically, for Bitcoin, you should have a personal wallet for it. There is one method of acquiring Bitcoin is through Bitcoin mining. Basically, what the makers of Bitcoin has think of ki how to reward the person involved in the Bitcoin. So when I have told about the distributed lasers, when that lasers got verified, the first person who verifies the laser and tell it to all the other participants, he is basically awarded with certain Bitcoins. That Bitcoin was initially the 25 Bitcoin. Now, after some time, it every 4 years it get halved. So those person who are basically verifying the transaction, they are known as the miners. So one of the methods of acquiring Bitcoin is Bitcoin mining. You verify the transaction, you get rewarded with the Bitcoin, and that will be there in your personal wallet. Now, second way of acquiring the Bitcoin is you pay somebody cash who is having the Bitcoin, he will transfer his Bitcoin to your wallet. Now, third is you sell some goods and services and you receive Bitcoin in exchange. And last one is if you invest in some Bitcoin exchanges. There are some Bitcoin exchanges are there who will operate in your name. They will hold Bitcoin in your name. Basically, you will pay the amount equivalent of Bitcoin and you can sell and make profit, etc. Yeah, please, next. Now, this is the one of the most vital question. Is Bitcoin legal in India? You know, RBI is the central authority for issuing the coins. So basically, RBI are issuing the circular basically to the banks about the to warn about the potential risk of cryptocurrencies. Even there was an inter-ministerial committee which has submitted its report, which says which recommended complete ban on private cryptocurrencies. A draft bill was also suggested, crypto token and crypto assets banking control and regulation bills. But somehow this was never enacted. So basically, the cryptocurrency was never banned in India. However, RBI in its circular address to bank basically banned the financial institution in participating into the trading of cryptocurrencies. Yeah, please next. The circular issued by RBI was challenged in the court, and Supreme Court has decided that basically Supreme Court was basically struck down that circular. There are some grounds in which it has struck down. I'm not going into detail, but as such, there are. Yeah, please next. Supreme Court has basically struck down the circular. The detail is there. So yeah, please next again. Basically, Supreme Court has struck down the circular because Supreme Court believed that RBI does not explore the availability of alternatives and introduce measures such as regulating cryptocurrency and cryptocurrency exchanges. So basically, even if that circular has been struck down by RBI, that may be treated as the temporary relief, but still the RBI is not in favor of cryptocurrency in India. Yeah, please next. This is basically the summary of. Basically, I'm rushing through the presentation to save some time. In summary, basically, even if Bitcoin is a decentralized country with neither backed or issued by central currency, there is no law in India at present which has banned the Bitcoin or any other cryptocurrencies. So basically, even if it is not legal, it is also not illegal.
So basically, at best, we can treat Bitcoin as a commodity money. Yeah, please next. I will skip this part. If anybody will ask this question, then I will answer that. Huh. This is the important part. What is the difference between Bitcoin and government-backed currencies? This we have already decided. Basically, currency money are the legal tenders and Bitcoin is not the legal tender. Another important part is since currency money is backed by the government is bound to pay the bearer equivalent amount of money, even if it is every note is signed by a governor saying he will promise the bearer to pay the equivalent sum of money, which is not in case of Bitcoin because it is not regulated by anybody. Yeah, please next. The question is why Bitcoin is so volatile. We have seen that it is very volatile even in 2021. It is because the newness of the concept, concept is not yet understood by the most of the person. Since this is not governed by any of the authorities, it is only governed by the demand and supply. Based on the demand and supply, the price fluctuates. And based because of lack of regulating authority, the price volatility is not getting stabilized. It is again heavily influenced by various government regulation. If suppose any country will ban a cryptocurrency, then suddenly there will be a fall in the value of cryptocurrency. If some country like El Salvador has accepted the Bitcoin, then it will add to the value of the Bitcoin. It increase the value of the Bitcoin. Another important factor why it is so volatile is the speculation. It is mostly used for speculation, whereas the makers doesn't mean it to use for the speculation. And another is limited supply and operation of whale accounts. Whale accounts are those accounts who are having a big amount of Bitcoin in their account, but inoperative. Suddenly they come into the market and there is an influx of Bitcoins in the market and it affects the value of the total Bitcoin. Yeah, please next. Bitcoin as an investment option. I think we will skip this part and we will go to the taxation part. Yeah, please. Recent finance bill, there is a separate section has been introduced which defines the virtual digital assets. Basically, in the definition of virtual digital assets, all type of cryptocurrencies or based on the cryptography, even NFTs, etc., has been treated as the virtual digital assets. Yeah, please next. Okay, please next also. Taxability, for the taxability of virtual digital asset, a new section has been proposed. It says it will be taxed at the rate of 30%. Okay, next. One of the most important aspect is there is no deduction in respect of any expenditure other than the cost of acquisition is allowed. Plus, there is a set off of any loss is allowed to the SSC. Okay. Again, the loss cannot be carried forward to the next financial year. Okay. Yeah, please next. Then another provision it says based on the TDS on virtual digital asset 194 S has been proposed to be this. It says there will be four kinds are there. When there is somebody is paying consideration in form of virtual digital assets, then he has to deduct 1% from such sum as income tax thereon. And in case basically every type of
virtual digital assets has been included, even if it is paid in cash, even if it is paid in virtual digital assets, even if it is paid to partly kind or partly digital. In all cases, basically, 1% TDS has to be deducted. Yeah, please next. Yeah, please next. This is all that part only. This is nothing much is there. Yeah, yeah, yeah. Just yeah, yeah, please. Hmm. So this is basically taxation is the summary. Taxability of the Bitcoin is summarized in this slide. Tax on virtual digital assets is proposed at the rate of 30%. Only the cost of acquisition is allowed as the deduction. Hmm. Then losses of any other head are not allowed to set off against the income of virtual digital asset. Similarly, the losses arises of virtual digital assets are neither allowed to set off against the income of any other head or nor allowed to carry forward to the next financial year. TDS of 1% of the consideration received in virtual digital assets. No TDS is allowed, no TDS is required if consideration is less than 50,000 for a specified person, and if consideration is more than less than 10,000 for other than specified persons. Yeah, please next. Now, these are basically what I call the regulatory concerns. I have told you the untraceability of the Bitcoin transaction. Basically, when you transfer Bitcoin through exchanges, exchanges are basically ensure the full know your customer procedure. So they are taking all the information of the customers because they are investing on behalf of the customer. But when a person is trading on his behalf, he's basically trading in his own personal account. Basically, those transactions are very difficult to trace. If I pay somebody from my personal account to a personal account of some other person without going through a exchange, then those transactions is very difficult to trace out because most of them may be using the VPNs or any other masking devices where the transaction cannot be traced. Such transaction can be used for money laundering. Such transaction can be used for funding of illegal activities, which is a concern for national security. That's why actually regulator is very concerned about tracing this private transaction of the bitcoins. Yeah, please next. This slide I have summarized what is the future of Bitcoin in India, which is basically I cannot predict the future of Bitcoin in India, but probable future as per my visions. Even if Bitcoin is introduced or included in the scheme of taxation, but that inclusion in the scheme of taxation doesn't provide legality to the Bitcoin. Concept is still new and still evolving, so there is lot of skepticism about the concept. It is basically conceived as a threat to Indian traditional currency system. Uh, Even if El Salvador has adopted it as a legal tender, it has provided hope to the Bitcoin enthusiasts. But again, you must remember that El Salvador has recently postponed 1 billion Bitcoin bond. So it again creates further skepticism. So there is basically a type of basically environment of suspicion in the market about the adoption of Bitcoin or adoption of cryptocurrency in the world. RBI basically lacks faith in Bitcoin. RBI is contemplating to launch its own digital currency. Where that will land, that is a different issue. So, as per my belief, the future of cryptocurrency is still sketchy as far as India is concerned. And again, as far as world economy is concerned, I think most of the economy are still not able to grasp the concept of Bitcoin, even though it may be very Bitcoin, very advantage, but still, I think future is still sketchy. And there is concept is need to be settled down first. Then only we can
foresee what will be the future of cryptocurrency in the world economy. Yeah, next. Now it is open for questions. Some of the slides which I have skipped, maybe in question if it is there, then I will address to those slides. Yeah, please. Okay, now Yeah. thank you, Pradhan Sahab. And now I request CMA Sankalp Wadhwa to take up the questions on behalf of participants, and participants may also ask questions as Wadhwaji may decide. Now I hand over the dais to Sri Sankalp Wadhwaji. Okay, please continue. Thank you, Dinesh ji. Thanks a lot. And I'm very thankful to the speaker, Shri Suraj Pradhan ji. He has very elaborately explained us the concept from regulatory perspective. What is basically the importance of Bitcoin and cryptocurrency. Uh, uh, Also, I would like to tell what all questions he has already covered. First, he covered what is Bitcoin. These questions were basically asked from the members who had certain queries regarding this topic for the day. So he covered what is Bitcoin. Is it a legal currency? Then he covered the tax implications of Bitcoin, and also is and also what is the future of Bitcoin in India? There are 2-3 questions more which I would like to ask him, which were put up by the members. If members have any of the questions, they can also ask in the chat box, and they will be addressed by the speakers. So one of the questions is, what is the base behind Bitcoin? Like, the government issues currency on the basis of gold reserves. So one of the participants has asked, what is the intrinsic value of Bitcoin? Shall I answer now, or you will? You can answer now, because then Digant's session will start, and there will be questions relating to him also. See, I have told you that Bitcoin is a system which was supposed to replace the traditional currency system. Traditional currency system, there is a basically evolved from the gold back system. Earlier, there used to be the gold currency, then the paper currency has come. Paper currency is again based on the gold backed system. But in case of Bitcoin, there is no intrinsic value is there. It is not backed on anything. Basically, it is based on the code. So there is no value. If suddenly Bitcoin crashes, there is all the investor will lose their money. There is nothing to be backed up. That is the one of the biggest disadvantages of the cryptocurrencies. Yeah. Okay. Uh, what do you, according to you, is the future of Bitcoin in India, and from the government's perspective, from planning and policies? Do you think that the government has adopted a very strict stand? Would it continue? It is just your opinion in a personal capacity, not as a designation, not as official. See, what I believe ki RBI is skeptic about the Bitcoin basically the cryptocurrency. Even I think Deputy Governor has said ki cryptocurrency is nothing but a Ponzi scheme. Yeah, basically it is a Ponzi scam, which actually I don't agree to it. It is not a Ponzi. We can describe ki it is not a Ponzi, but basically there is a skepticism in the government circle ki, about the Bitcoin. The basic is ki, the basic is the first question. What you say ki it is has no intrinsic value. Then how are it is getting inflated? So in Ponzi, what happens? Ki the new investor has paid out of the collection of the old investors are paid out of the collection of the new investors. So whether Bitcoin is operating like that, it is actually not. It is basically something which is supposed to means change the currency system. It
it is basically a currency, but without backed by any of the gold reserves or something. So still government is skepticism because of the involvement of secrecy. There is a lot of secrecy is there. Secretly, you can use Bitcoin. It can be used for Hawala transaction. It can be used for illegal tradings, etc. That's why there is a lot of skepticism. And till this air is cleared, I think the same will continue. Um, unless there will be clear, concrete Bitcoin bill will be or Bitcoin Act, will, cryptocurrency Act will be there. I don't think there will anything is going to change. Yeah, thanks. Thank you, sir. Thank you so much. I think you have covered the topic extensively, and as we have some questions, so I think first let the second panelist as well speak, Shri Digant Chadda, and then we can take questions. Some of the questions which will be related to your expertise, they will be also asked. So I'm really grateful to you for a wonderful presentation, which was very exhaustive and covered aspects from regulatory perspective, not only what is the RBI's view, but also what is the finance ministry's view and how they are going to tax it. Now I welcome Sri Digan Chadha, who is a research lead at Coin Sutra and a seasoned writer with over 2 years of experience writing about blockchain and cryptocurrency. He's a chartered accountant and a lawyer with over 10 years of experience in fintech industry, and he likes to read and travel as much as possible. So over to you, Digant. I think he'll be speaking about the topic from the industry perspective. Thank you so much, Sankalp, and thank you so much, Mr. Pradhan, for those valuable nuggets. Is my presentation visible? Sankalp, can you confirm that? Yes, yes, it is visible and you're audible as well. Okay. So हमारे पास कितना time है, Sankalp? Approximately 30-35 minutes or 40 minutes? Yes, 30-35 minutes you can speak. After that, questions. Cool. So a request to the members, if you can try, if you can open up your videos, it will be very interactive. And in case you have any questions in between as well, you can just stop me and I can answer those questions. One update on the inflated gold back system जो अभी प्रधान सर discuss कर रहे थे, that INR currency is backed by gold reserves. So when I started researching about cryptocurrencies in 2019, so there is an update on that. Gold standard system ended in 1971 globally. तो आज की डेट में कोई भी national currency किसी भी gold reserve से backed नहीं है, ठीक है? So we'll continue on that. Let me introduce myself first. So Sankalp already did that, and thank you so much for that. So I am a chartered accountant and a lawyer by profession. I have served in the fintech industry for 10 plus years. And 2019, I started researching about cryptocurrencies. And by 2021, I left my corporate job and jumped into this sector full time. As of now, I'm working as a part of the research team on CoinSutra. And what we do at CoinSutra is that we work as a bridge between the industry and people. So there, as everyone said, that there is a lot of information gap between what's happening in cryptocurrency and what cryptocurrencies are all about. So that's what we do, and we try to educate people on that aspect. Moving on, what is money? Se pehle, I wanted to address this skepticism, which Mr. Pradhan also pointed out, that a lot of people say that Bitcoin is a scam, it doesn't have any intrinsic value, and it doesn't have any regulatory authority. Okay? So these were the questions with which I started my crypto journey and tried to research and find answers to these questions. And I can comfortably say that I found those satisfactory answers. And do remind me to come back to these questions, because I think that within next 30 or 40 minutes, you will also find answers to these questions. Moving on, what is money ki agar humne baat kari, to can anybody from the audience simply explain it to me? What is money? Hello? No one?
Can anybody take up this question? So yes, money can be used as an exchange of medium for barter, and it is the common currency in a country. So any type of anything which can be used as a medium of exchange can be money. ठीक है? तो अगर हम अपनी ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो साहब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो तब से है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है. जब मनी नहीं थी तब भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता था थ्रू बार्टर सिस्टम. ठीक है? तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स. ठीक है? एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड इम्पॉसिबल था. There was a need of double coincidence of wants. So we moved on to commodity money. Like commodity money कुछ 5000 साल पहले शुरू हुई and by 3000 BC. And commodity money का simple सा meaning ये है, a good or commodity that functions as money. तो कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल पैसे की तरह किया जा सकता है, उसमें कोको बीन्स का इस्तेमाल होता था, राइस का इस्तेमाल होता था, कौड़ियां जिनको हम सी शेल्स बोलते हैं उनका भी इस्तेमाल होता था. लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कमोडिटी मनी बन के आई इन लास्ट ईयर्स, दोज वर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. क्योंकि गोल्ड की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी. तो अगर मैं गोल्ड के सिक्कों का इस्तेमाल करूं एज मनी, तो उस गोल्ड कॉइन की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है. ठीक है? बट इस कमोडिटी मनी सिस्टम का अपने इश्यूज थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी को यूएस में पैसा पे करना है और मैं उसको गोल्ड में पे करना चाहता हूं, तो साहब एक तो यहां से भेजना गोल्ड कॉइन्स को इज एक्सपेंसिव. दूसरा, उसकी सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज अनदर इशू. ठीक है? सो वी मूव्ड ऑन टू अ बेटर सिस्टम नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी, जो कि हम बोलते हैं कि जो सरकार की करेंसी नोट्स हैं, दे आर बैक्ड अप बाय गोल्ड रिजर्व्स. सो दैट स्टार्टेड इन 1871. रिप्रेजेंटेटिव मनी को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये क्रिप्टो करेंसीज को समझने में आपके बहुत काम आता है. ठीक है? सो रिप्रेजेंटेटिव मनी इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी बैक्ड मनी. तो साहब ये कुछ नहीं है रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये एक कागज का टुकड़ा है. इसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स समथिंग ऑफ वैल्यू. ठीक है जी? सो 1871 onwards, this representative money was started and being printed and being used in the economy. ठीक है? तो उस दौरान एक नया सिस्टम सेटअप हुआ which is known as gold standard of money. ठीक है? अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो सब सरकार के पास गोल्ड है. उस गोल्ड के अगेंस्ट वो करेंसी नोट्स को इशू करते हैं. वो यूएस डॉलर हो सकता है, वो यूरो हो सकता है, वो आईएनआर हो सकता है. ठीक है? तो जो आपकी करेंसी है दैट इज बैक्ड बाय गोल्ड. तो लेयर 2 हो गई आपकी करेंसी नोट और लेयर 1 विल बी गोल्ड. जो यूएस डॉलर है उसको वैल्यू कहां से डिराइव होती है? उसकी वैल्यू कहां से डिराइव होती है? वो गोल्ड से होती है, और गोल्ड की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है. इसी यूएस डॉलर को जब आप बैंक में जमा कराते हैं और उसके अगेंस्ट कोई चेक इशू करते हैं, देन चेक विल बी कॉल्ड एज लेयर 3 मनी. तो जैसे ही आप लेयर्स इंक्रीज करते जाते हैं मनी की, वैसे ही ट्रांजैक्शंस इजी हो जाती हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है. ठीक है? अब इस रिप्रेजेंटेटिव मनी में या गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कतें थी. वो दिक्कत ये थी कि साहब सरकार उतना ही पैसा छाप सकती है जितना गोल्ड रिजर्व उसके पास है. उससे ज्यादा तो आप छाप ही नहीं सकते पैसा. तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको और पैसे की जरूरत पड़े, वहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ उधार ले सकते थे. ठीक है? तो एक ऐसी सिचुएशन हुई इन हिस्ट्री जहां पे ग्लोबल क्रंच ऑफ करेंसी हुआ. ठीक है? और सारी की सारी सरकारों ने बोल दिया जी कि हम इस गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मनी को फॉलो नहीं कर सकते. एंड दैट वाज 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है जी? तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, धीरे धीरे करते जर्मनी स्टार्टेड इट बिकॉज जर्मनी वाज फाइटिंग विद यूरोप एंड द एलाइज. धीरे धीरे करते करते सारे के सारी सारी कंट्रीज ने रिप्रेजेंटेटिव मॉनेटरी सिस्टम को अबॉर्ट किया एंड दे स्टार्टेड विद अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम व्हिच स्टिल एग्जिस्ट्स टुडे नोन एज फिएट मॉनेटरी सिस्टम. तो साहब अब फिएट मॉनेटरी सिस्टम का मतलब सिर्फ सिंपल है कि सरकार किसी भी चीज को लीगल टेंडर अगर डिक्लेयर कर देती है, वो कल सुबह से मनी कहलाएगा. तो जैसे 2016 8 नवंबर मोदी जी ने आके बोला जी कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, तो वो अब करेंसी नहीं है. हमने 2000 का नोट एक इंट्रोड्यूस कर दिया जी कि ये कागज कल से मनी है, तो वो मनी है. दैट्स ऑल. ठीक है? तो अगर हम इसी पर्टिकुलर इमेज को दोबारा से देखें
आज के मॉनेटरी सिस्टम में देयर इज नो लेयर 1, कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है फिएट मॉनेटरी सिस्टम के अगेंस्ट। तो यूएस डॉलर जितना मार्केट में सप्लाई में है, आईएनआर जितना मार्केट में सप्लाई में है, उसके अगेंस्ट कोई गोल्ड रिजर्व बैकिंग एग्जिस्ट नहीं करती आज की डेट में। ठीक है, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, इन्फ्लेशन एक दिक्कत है जो इस फिएट मॉनेटरी सिस्टम से आई। प्रॉब्लम यही थी कि साहब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू अब नहीं है और सरकारें जितना चाहे पैसा छाप सकती हैं। ठीक है, तो आप अगर अपनी इकोनॉमी को एक वेइंग स्केल की तरह देखें तो एक तरफ आपके गुड्स हैं जो मार्केट के अंदर है और एक तरफ आपके पास इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना है, तो वो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, जितने गुड्स हैं उतना ही पैसा उसको कंज्यूम करने के लिए खर्चा जाएगा। जैसे ही सरकार इस पैसे को और इंक्रीज करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है, तो साहब गुड्स तो उतने ही थे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होगा क्या कि इन्हीं गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। कि आप पैसा छापते चले गए, इसकी वजह से जो आपकी यूटिलिटीज थी या गुड्स थे उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कैन आइदर बी टर्म्ड एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स और डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी इज द मेजर फैक्टर। अब इन्फ्लेशन जो है वो कुछ हद तक होना भी चाहिए टू पंप द फ्यूल द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी, एंड दैट कैन बी लाइक, अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात माने तो 2% का रेट कहा जाता है डेवलप्ड नेशंस के लिए, और डेवलपिंग नेशंस जो कि इंडिया है उनके लिए 4 to 6% इज एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मूविंग ऑन, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक मेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है विच इज नोन एज सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो अगर आप देखें कि 2011 में अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स आपको 85 रुपीस का कॉस्ट करता था, तो वो आज की रेट में 165 और 160 और 170 रुपए के अराउंड कॉस्ट करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। कि अगर मैं 10 साल पहले होता तो मेरा खर्चा आधा होता, मेरा घर चलाने का खर्चा ऑलमोस्ट 50% होता। ठीक है जी, अब ये जो इन्फ्लेशन की कहानी है, इंडिया बहुत सक्सेसफुली कंटेन कर पा रहा है इन्फ्लेशन को काफी लंबे समय से। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये इन्फ्लेशन का रेट आउट ऑफ हैंड गया है इन पास्ट, एंड कुछ कंट्रीज आज की डेट में भी हैं जहां पर इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ हैंड। तो अगर आपका मंथली इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा होता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में हुआ, हंगरी में हुआ। 21st सेंचुरी में पहला केस जो हाइपर इन्फ्लेशन का था वो जिम्बाब्वे में देखा गया। ठीक है जी, हालात ऐसे थे कि आपके ब्रेड बटर हर चीज का प्राइस ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर डबल होता जा रहा था, बिकॉज आपकी करेंसी की वैल्यू धड़ल्ले से गिरती जा रही थी। ठीक है, 2009 के अंदर जिम्बाब्वे ने एक $100 ट्रिलियन का नोट छापा। ठीक है जी, एक के आगे 14 जीरो, जिसकी वैल्यू उस दिन के हिसाब से $1 थी। ठीक है, ये साइन बहुत बहुत अमेजिंग है। सो दिस वाज अ साइन आउटसाइड टॉयलेट, सो इट सेज टॉयलेट पेपर ओनली टू बी यूज्ड इन दिस टॉयलेट, नो कार्डबोर्ड, नो क्लॉथ, नो जिम्बाब्वे डॉलर्स, नो न्यूज़पेपर। तो अगर इसको मैं सिंपली समझाऊं तो वाइपिंग योर बट विद जिम्बाब्वे डॉलर्स वाज चीपर देन बाइंग अ टिश्यू रोल। तो आपको $1 ट्रिलियन का नोट भी कम पड़ता था एक डिसेंट बर्गर खरीदने के लिए। ठीक है, एंड जिम्बाब्वे के जैसे वेनेजुएला की सिचुएशन है विच इज ऑनगोइंग एट द मोमेंट। जहां तक मुझे पता है 2020 का इन्फ्लेशन रेट इन जिम्बाब्वे वाज 6500%, सॉरी वेनेजुएला। ठीक है जी, मूविंग ऑन, जैसे ही आपकी सरकार पैसा छापती है तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होता है इन द मार्केट, जिसकी वजह से हमने बात की कि इन्फ्लेशन हो सकता है। एक और प्रॉब्लम है विच इज योर बैंकिंग सिस्टम। आपके बैंक्स के पास एक फ्रैक्शनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग है। अगर फ्रैक्शनल सिस्टम की बात करें, इसका मतलब अगर आप 100 रुपया जमा कराते हैं किसी भी बैंक के अंदर, तो बैंक 90% आगे लेंड कर सकता है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली अगले बैंक के अंदर लैंड करता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। मान लीजिए जॉन है। ठीक है, जॉन ने $1000 जमा कराए बैंक ए के अंदर। अब बैंक ए कितना लोन दे सकता है किसी को भी आगे जाके? 90%,
ऑब्वियसली। तो बैंक ए $900 का लोन दे सकता है और बैंक ए ने वो लोन दिया डेविड को। तो साहब अब डेविड के पास $900 हुए और उसने भी क्या किया, उसने बैंक के अंदर जमा कराए, ठीक है। अब बैंक बी जो है, बी अपने डिपॉजिट्स का 90% आगे आगे लेंड कर सकता है, विच इज $810। तो साहब इकोनॉमी के अंदर हमने इन्फ्यूज किया सिर्फ $1000, और जब ये साइकिल चलती है थ्रू बैंक्स एंड लेंडिंग, तो ये एंड अप करते हैं मतलब ये तकरीबन $10,000 हो जाते हैं इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ आरबीआई या आपका एपेक्स बैंक ही मनी की सप्लाई बढ़ाता है मार्केट के अंदर, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो लेंडिंग के थ्रू उस सप्लाई को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, फिएट मॉनेटरी सिस्टम की अगर मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो तकरीबन 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी। दूसरा, सब एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसके इशू को कंट्रोल करती है, ठीक है। थर्ड इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ, ऑब्वियसली जहां पर भी हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन देखी गई है, वो वहां वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो था, जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आया, वो कहीं ना कहीं करप्शन या फ्लॉड मॉनेटरी पॉलिसीज थी, ठीक है। एंड द लास्ट, दुनिया में ऐसे बहुत सारे आज की डेट में एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? बिटकॉइन। अगेन कमिंग बैक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार अभी तक के मॉनेटरी सिस्टम में, और आई कैन आई मूव ऑन? Excuse me. Yeah. Sir, it's really nice presentation and I'm getting your point which you're saying. I was just asking कि presentation आप share करेंगे? You can have it if you wanted. I'll share it with you. That's Okay, not a thank problem. Any questions? No, nothing. Thank you. Okay. So, can anybody explain it to me in simple layman language? What is Bitcoin according to them? Anyone? तो साहब, जब बिटकॉइन जब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एक क्रिप्टो कोडर्स का एक फोरम था। उस फोरम पे एक आदमी जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, ठीक है जी, आज तक उसको कोई जानता नहीं, वो एक आदमी था, औरत थी, और इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, नोबडी नोज। तो एक आईडी था, एक अकाउंट बना हुआ था सतोशी नाकामोटो के नाम का। उन्होंने एक 9 पेजर डॉक्यूमेंट पीडीएफ उन्होंने अपलोड किया उस फोरम के अंदर, एंड दैट इज नोन एज बिटकॉइन व्हाइट पेपर। हर क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट का एक व्हाइट पेपर होता है, विच इज द ब्लूप्रिंट कि हम बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 2008 में बिटकॉइन व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2009 में एक्चुअली नेटवर्क लाइव हुआ था, ठीक है। तो अगर हम विजन की बात करें, बिटकॉइन करना क्या चाहता था, और जो सतोशी नाकामोटो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं आपको ₹1000 देता हूं, देयर इज नो थर्ड पार्टी बिटवीन अस। इस ट्रांजैक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरीके का अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कोई ना कोई बीच में हमेशा होता है। वो बैंक हो सकता है, वो पेमेंट वॉलेट हो सकता है, ठीक है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे इलेक्ट्रॉनिकली जिसमें कोई थर्ड पार्टी ना हो। ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था बिफोर बिटकॉइन, ठीक है। मूविंग ऑन, इस सिस्टम को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, दैट्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात यह है कि जब आप अपने बैंक में पैसा डालते हैं, तो आपने कितना पैसा जमा कराया, आपने कितना पैसा निकाला, आपको कितना इंटरेस्ट बैंक ने देना है, इस सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, और ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करता है? ऑब्वियसली बैंक मेंटेन करता है। तो बैंक इज द सेंट्रल अथॉरिटी मेरे उस पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूं बैंकर्स पे कि साहब वो बिल्कुल ठीक तरीके से सारा का सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उसमें कोई घपला नहीं हो रहा होगा। एंड अगर आज मेरा 2 लाख रुपया बैंक के अंदर पड़ा है, तो जब भी मैं विड्रॉ कराना चाहूंगा, मैं विड्रॉ करा पाऊंगा। यही मेरा भरोसा है, और इसी भरोसे हम सारे लोग बैठे हुए हैं आज की डेट में। क्या ऐसा हो सकता है कि कल को बैंक वो पैसा फोरफीट कर ले? ऐसा इंडिया में कभी हुआ नहीं है, बट 2009 2010 साइप्रस में हो चुका है,
ठीक है जी। सरकार ने बोला जी कि हमारी हमारी सरकार इंसॉल्वेंट हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि अगर हम आपको हेल्प तभी करेंगे जब आप अपने डिपॉजिट्स को फोरफिट करोगे। सो तकरीबन 10 से 25% के बीच, डिपेंडिंग ऑन एवरी इंडिविजुअल अकाउंट, उन्होंने बैंकिंग बैलेंस ही फोरफिट कर लिया आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है सर या सर अभी लास्ट 2 साल पहले सर पीएमसी बैंक में भी कुछ ऐसे हुआ था जिसमें वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिए थे डिपॉजिटर्स के। सर फ्रीज हुए थे, पैसा फोरफिट मेरे ख्याल से नहीं हुआ उस सिचुएशन में। लेकिन सर अभी भी उसके लिए ना क्या हो कि अभी भी वो बैन लगा हुआ है डिपॉजिट निकालने के ऊपर, एब्सोल्युटली। और जबकि इसके कारण कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। हाँ, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि आपका ही पैसा आप नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ जी दैट बैंकिंग सिस्टम। जी मूविंग ऑन, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन सिंपल सा ये था साहब कि सेंट्रल अथॉरिटी अब किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। सो वी वांटेड टू क्रिएट अ लेजर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बिटकॉइन क्या है साहब? बिटकॉइन एक नेटवर्क है जो कि आपके और मेरे जैसे लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये इंटरनेट नहीं है या ये कोई सर्वर क्रिएटेड नहीं है। आप अपने लैपटॉप को बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर ले जा सकते हैं और आप एक नोड बन सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में रफली 10,000 नोड्स हैं बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, आप एक 10,000 एक नोड बनाना चाहते हैं कि साहब मैं भी नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बिटकॉइन की वेबसाइट पे जाना है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और वो सॉफ्टवेयर रन होना शुरू हो जाएगा आपके लैपटॉप के ऊपर। नाउ यू विल बी द नेटवर्क नोड, यानी कि आप भी उस नेटवर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हर नोड, हर उस कंप्यूटर में जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके पास इस बिटकॉइन लेजर की एक कॉपी है। ठीक है, तो अगर 10,000 नोड हैं तो 10,000 कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और 2009 से बिटकॉइन का नेटवर्क स्टार्ट हुआ, तो जितनी ट्रांजैक्शन आज तक हुई हैं वो पूरा का पूरा डेटाबेस आपके सिस्टम में आ जाता है इफ यू आर अ नेटवर्क नोड। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। सो DLT इज अ रेप्लिकेटेड एंड शेयर्ड डेटाबेस. Database is maintained by a network made up of number of computer nodes. तो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किए हैं टुवर्ड्स द नेटवर्क। ठीक है, और देयर इज नो सिंगल अथॉरिटी ओवर द नेटवर्क। किसी एक आदमी की अथॉरिटी नहीं है नेटवर्क पे, सबकी शेयर्ड अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी होती है, उस तरीके का सिस्टम है कि साहब सब डिसाइड करेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे वो मान लिया जाएगा, किसी एक बंदे की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। साहब आज की डेट में बैंक का डेटाबेस जहां भी सेव्ड है, जहां भी सर्वर है, वहां पे अगर फिजिकली कोई रिस्क है, आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो साहब वो डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। यहां पर जितने नेटवर्क नोड्स हैं उतने डेटाबेस की कॉपीज हैं। तो अगर एक जगह आपका एक्चुअल नेटवर्क नोड डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, वो नेटवर्क एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, आपको कोई डाउनफॉल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं साहब, चाइना ने पिछले साल बिटकॉइन माइनिंग को बैन किया। उन्होंने बोला जी मेरे देश के अंदर जितने नेटवर्क नोड्स हैं बाहर निकलो या तो और बंद करो, ये नहीं होगा। ठीक है जी, बिटकॉइन नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ग्लोबली जितने बाकी नेटवर्क नोड्स थे वो काम कर रहे थे बिल्कुल ठीक तरीके से। उन लोगों को 2-3 महीने लगे, उन्होंने वो सिस्टम्स या जो भी उनके माइनिंग रिग्स थे वो निकाले। कुछ लोगों ने हांगकांग में सेटअप किया, कुछ लोगों ने फिलीपींस में सेटअप किया और आज की डेट में वो परफेक्टली रन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के। नंबर 1 इज इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक बार लेजर पे रिकॉर्ड हो जाती है वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं की जा सकती। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन इज अ पब्लिक लेजर। साहब 2009 से आज तक कितनी ट्रांजैक्शन हुई वो कोई भी आदमी जाकर उस लेजर को देख सकता है। ठीक है, वो नेटवर्क नोड होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, पब्लिक लेजर है, जाके देखो। ठीक है, बट आपको आइडेंटिटी पता नहीं लगेगी कि किस वॉलेट से किस वॉलेट में गया, यानी कि आपके पास वॉलेट एड्रेस होगा जो कि 16 या 22 डिजिट का एक एक कोड होता है। आपको ये पता लगेगा इस वॉलेट से इस वॉलेट तक 1 BTC गया, 2 BTC गया, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये वॉलेट है किसका। ठीक है, तो यूजर की एनोनिमिटी मेंटेन रहती है। मूविंग ऑन, एनोनिमिटी की हमने बात करी। डिसेंट्रलाइजेशन, साहब डिसेंट्रलाइजेशन यहां पे दो तरीके से है। एक तो ज्योग्राफिकली, कोई भी नेटवर्क नोड एक जगह पे नहीं है, ये ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोबली। ठीक है,
एंड सेकंड इज अथॉरिटी। किसी भी एक नेटवर्क नोड का कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, सबका कुल मिलाकर शेयर्ड अथॉरिटी है, ठीक है। एंड द सिस्टम इज ट्रस्टलेस। अब ये ट्रस्टलेस जो वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। ट्रस्टलेस शब्द का मतलब ये है कि अब आपको बीच में कोई थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरे को आपको बिटकॉइन देना है तो मैं सीधा नेटवर्क पे जाके उसको ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ये ट्रस्टलेस सिस्टम की वजह से ही भारत सरकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है। वो कह रहे हैं साहब कि हम एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ई रूपी, और वो ई रूपी बनेगा हमारे ब्लॉकचेन पे, ठीक है जी। और अब अगर मैंने आपको रुपए देने हैं डिजिटली तो मैं उस नेटवर्क के थ्रू दे पाऊंगा, बीच में कोई बैंकिंग सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पेमेंट वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सबसे बड़ा फायदा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, ठीक है। बट उसके कुछ नुकसान भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को बनाने के लिए, जैसे हम यू आर आल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो साहब जब लेजर को मेंटेन करते हैं तो लेजर को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स होते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब वो रूल्स जो है वो अलग अलग रूल बुक्स हैं। मान लीजिए 10 रूल बुक्स हैं, उसमें से आप कोई भी एक रूल बुक चूज कर लो, अब इसी रूल बुक को फॉलो करना है, ठीक है। अब उन 10 में से एक रूल बुक का नाम है ब्लॉकचेन। तो अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ब्लॉकचेन के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है तो उस लेजर को ब्लॉकचेन लेजर भी बोला जा सकता है। बट आपको समझना यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो इट इज अ वेरिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ हाउ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वुड वर्क, ठीक है। अब आपको समझना यह है कि साहब ब्लॉकचेन के जो रूल्स हैं उनका कहना यह है कि हमारा जो डेटा है, अब ये डेटा किस चीज का है साहब, ट्रांजैक्शंस का, कि बिटकॉइन पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई, इस वॉलेट से इस वॉलेट पे पैसा गया, इस वॉलेट से इस वॉलेट पे पैसा गया, बस यही ट्रांजैक्शंस हैं। उन ट्रांजैक्शन का डेटाबेस है जो कि ब्लॉकचेन पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये ब्लॉक्स के अंदर ग्रुप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि साहब हमने डिसाइड किया कि 100 ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक ब्लॉक के अंदर 100 ट्रांजैक्शन आई, जैसे ही 100 ट्रांजैक्शन पूरी हुई अगली ट्रांजैक्शन के लिए नया ब्लॉक क्रिएट होगा, और फिर उसमें 100 ट्रांजैक्शन आएंगी, फिर उसके लिए अगला ब्लॉक क्रिएट होगा, उसके लिए 100 ट्रांजैक्शन आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं ट्रांजैक्शन से। तो 2009 से जब से नेटवर्क स्टार्ट हुआ तब से ब्लॉक्स क्रिएटेड होते गए डेटा के। अब इसके अंदर डेटा है ट्रांजैक्शन का कि किस वॉलेट से किस वॉलेट पे पैसा गया, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए और ये चेन फॉर्मेट बन जाता है एक तरीके से। देयरफॉर इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ब्लॉक चेन, बिकॉज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ चेन फॉर्मेट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप अगर इस इमेज को देखें जो आपके सामने है, तो साहब ये 3 ब्लॉक्स हैं। मान लीजिए 2009 में जब नेटवर्क शुरू हुआ ये सबसे पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ वहां पे, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर 3 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। पहला तो डेटा होता है, ट्रांजैक्शन का डेटा होता है। दूसरा उस ब्लॉक के अंदर एक हैश वैल्यू होती है। हैश वैल्यू को आप समझ सकते हैं, इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। और तीसरी चीज जो उसके पास होती है वो है हैश वैल्यू ऑफ जस्ट अ प्रीवियस ब्लॉक। तो 3 चीजें, एक तो ब्लॉक के अंदर डेटा होता है, अपनी हैश वैल्यू होती है, और प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू होती है, इमीडिएट जो पिछला वाला था, ठीक है। तो अगर हम इस पहले ब्लॉक को देखें जो कि हम मान सकते हैं कि 2009 में जब नेटवर्क स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला ब्लॉक जो क्रिएट हुआ वो ये था। तो इससे पहले कोई ब्लॉक नहीं था, इसीलिए इस फर्स्ट ब्लॉक को बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन थी, डेटा था और अपनी हैश वैल्यू थी। सेकंड ब्लॉक के अंदर अगर आप हैश वैल्यू को देखें तो फर्स्ट ब्लॉक की हैश वैल्यू क्या थी, 2D9G। सेकंड ब्लॉक के पास 3 डेटा थे, ठीक है जी। एक तो अपना ट्रांजैक्शन डेटा था, एक अपनी हैश वैल्यू थी, और प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू थी। अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं और इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि अगर कोई भी हैकर किसी एक ब्लॉक को हैक करके उस ट्रांजैक्शन को चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है साहब, मेरे को अगर चोरी करनी है मैं करूंगा क्या, मैं ट्रांजैक्शन डेटा ही चेंज कर दूंगा ना, सिंपली। मैं अपने अपने मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख था, मैं उसको 1 करोड़ कर लूंगा, 2 जीरो ऐड कर दूंगा, अगर मैं डेटाबेस को चेंज कर सकता हूं तो, ठीक है। सो इफ समवन ट्राइज टू hack into the system and try to change a transaction, transaction change होते ही
उसकी हैश वैल्यू या उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हैश वैल्यू चेंज होगी अगले ब्लॉक को पता लग जाएगा, क्योंकि उसका प्रीवियस हैश मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि साहब कोई हैक हुआ है और आने वाली सारी ट्रांजैक्शंस इनवैलिड हो जाएंगी, ठीक है। 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि ये नोड नेटवर्क है जिसने हैक करने की कोशिश की थी, ठीक है। और सक्सेसफुली आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि किसी एक आदमी की अथॉरिटी नहीं है इस नेटवर्क के ऊपर या इस लेजर के ऊपर। मूविंग ऑन, डेटा इज ग्रुप्ड इन ब्लॉक्स and these blocks are connected in a chain format, therefore known as blockchain. अब ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। या तो वो पब्लिक नेटवर्क हो सकते हैं। पब्लिक नेटवर्क का मतलब ये है विजिबल टू पब्लिक, जनता देख सकती है, ठीक है जी। तो बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगन, ये सारे के सारे पब्लिक नेटवर्क हैं, इनका डेटा विजिबल टू पब्लिक है, ठीक है। उसके अलावा ब्लॉकचेन के और बहुत सारे फायदे हैं, यानी कि कंपनीज इस्तेमाल कर सकती हैं ब्लॉकचेन का फॉर मैनेजिंग देयर ओन इंटरनल डेटाबेस, ठीक है। सो फॉर दैट, लाइक हाइपरलेजर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो आईबीएम ने अपने लिए बनाया, कोरम एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो जेपी मॉर्गन ने अपने लिए बनाया। तो आपको क्या लगता है साहब, सीबीडीसी का जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो पब्लिक नेटवर्क होगा या प्राइवेट नेटवर्क होगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, प्राइवेट एब्सोल्युटली इट विल बी अ प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि वो कंट्रोल एक ही अथॉरिटी करेगी, ठीक है। But Digant, I have a question. श्योर। So, the problem that Facebook faced with making its own currency was that it was a private network, and that's why it couldn't launch itself. So, बहुत probability है if they make a private network, then it might not be as popular as other Bitcoin, other currencies like Bitcoin and Ethereum. नहीं, देखो आपको समझना ये पड़ेगा कि बिटकॉइन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अलग हैं। सीबीडीसी जो इशू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से थर्ड पार्टी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करो कि साहब वो ब्लॉकचेन के लिए हो जाएगा, तो साहब ब्लॉकचेन से उसका कंपैरिजन नहीं, ब्लॉकचेन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप ई रुपी की बात करो तो ई रुपी की वैल्यू तो 1 रुपए ही रहेगी ना, स्टेबल कॉइन है, वो तो करेंसी है। तो वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो कभी बनाने की ना कोशिश की जा रही है, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीबीडीसी को आपको समझना पड़ेगा कि सीबीडीसी आपके फिएट मॉनेटरी सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है, कि आप नोट छापते थे, अब ब्लॉकचेन के ऊपर आप कॉइन्स जनरेट करोगे, बट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन उस सीबीडीसी से भी आएगा, क्योंकि आप सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो उसी फिएट मनी की। Excuse me, sir. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Yeah, I can hear you. सर इसमें फिर जैसे जो सेंट्रल बैंक वाला रहेगा इसके अंदर तो फिर हम जैसे कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर रहेगा उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ। आज ये जो कैश में इन्वेस्टमेंट के लिए लेन-देन है कर ही रहा है, नहीं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज इसमें नॉट बीइंग क्रिएटेड फॉर बट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। राइट नाउ वी आर मतलब अगर हम बिटकॉइन में कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो इसलिए करना चाहता है कि एकदम फ्लक्चुएशन से जो एकदम मार्केट में एकदम आता है, गैप आता है अप का या डाउन का, उसका बेनिफिट उठा पाए। जी, तो अगर ऑब्वियसली आपका हर चीज एक्सपेक्टेशन ये है कि सीबीडीसी वॉलेटाइल होगा और वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन गलत है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से आरबीआई ने भी नहीं बताई है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा होता है वैसे ही होगा, ओके। एंड सर इट विल एक और रिमेन चीज स्टेबल। या प्लीज गो एक ऑन। और चीज पूछनी चाहती सर, इसके बीच में अगर एक मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए कि जैसे आप बिटकॉइन के लिए बता रहे हैं, तो क्रिप्टो में देयर आर लॉट ऑफ मतलब क्रिप्टोस रहती हैं कि बिटकॉइन है या चाइनीज डॉग, जो भी मुझे नहीं पता है इतना, तो उसमें से कौन सा प्रेफर होता है और किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको हमें चूज करना चाहिए, उसकी विच बात वन थोड़ी शुड बी चूज? देर में करें, बिकॉज अभी अभी आई एम हाँ इन हाँ, इन नहीं बिटवीन नहीं दैट, ठीक नहीं, है। आपको बाद में ले आई विल टेक अप दिस क्वेश्चन ओके लेटर ऑन फॉर श्योर, ठीक है। सर हाँ जी। सर सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ये जो आरबीआई करेंसी इंट्रोड्यूस कर रही है, इट्स अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ 1 रुपी नोट और 10 रुपी नोट व्हिच आई हैव सिंपली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और ये वो सॉफ्ट कॉपी है जिसमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ रही, बैंक नहीं होगा बीच में। बैंक नहीं होगा, और जो जितनी ट्रांजैक्शन आपने बताया था इससे पहले वाले सेशन में बता रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग पर्पसेस है, उसमें से एक पर्पस ये भी है कि
to buy a pizza, let's say pizza है, बहुत famous product हुआ, तो Yeah. उस पिज्जा को फैसिलिटेट करने के लिए आरबीआई ने करेंसी लेके आया सॉफ्ट कॉपी में, दैट्स इट। जी ट्रांजैक्शन बिल्कुल को करने के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस का तो कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ठीक। जी बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, मूविंग ऑन। हमने 5 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी थी फिएट मॉनेटरी सिस्टम की। ठीक है जी, उन 5 में से 4 तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन ही सॉल्व कर देता है। सेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम एक मुद्दा था, तो सब अब कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक मुद्दा था। बिटकॉइन कंप्लीटली पब्लिक नेटवर्क है, आप सारी ट्रांजैक्शंस जाके देख सकते हैं। ठीक है। करप्शन एंड फ्लॉड मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है करप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एंड लास्ट कि साहब दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल फोन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। वहां पे कोई बैंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एक मुद्दा रह गया, एक इशू रह गया, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी, और वो बिटकॉइन सॉल्व करता है। ठीक है जी। सो बिटकॉइन की जो सप्लाई है दैट इज लिमिटेड टू 21 मिलियन। फिएट मॉनेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा पेन पॉइंट इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। ठीक है। बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो मार्केट में फिक्स्ड रहेगी एंड दैट इज 21 मिलियन। ठीक है। आज की डेट में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ बिटकॉइन इज 18.9 मिलियन। तो 90% ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं बिटकॉइन, 10% और रहते हैं। तो वो जब 10% है, अगले शायद 10 या 20 साल का हमारा टारगेट है कि पूरे के पूरे एमिट हो जाएंगे और 21 मिलियन हो जाएंगे। तो 21 मिलियन तक जब तक जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ऑफ बिटकॉइन बढ़ रही है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जरूर होगा। ठीक है। तो जब एक नई क्रिप्टो करेंसी बनती है तो उसकी सप्लाई को मार्केट में एमिट होने में टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं। ठीक है। हर क्रिप्टो करेंसी अपना एक एमिशन शेड्यूल लेके आती है, तो जब वो एमिट कर रहे हैं तब इन्फ्लेशन रहता है। इसलिए इसलिए उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन। अब अगर हम बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की बात करें, जो हमने नेटवर्क नोड्स का समझा कि आप अपने कंप्यूटर को नोड बना सकते हैं नेटवर्क पे जाके, तो आप क्यों बनाएंगे नेटवर्क पे नोड? साहब मैं 3 लाख रुपए का एक सेटअप खरीद के क्यों नेटवर्क में कंट्रीब्यूट करूं? सिंपल सी बात है ना, मेरे पास भी तो कोई मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए समझते हैं कि एक ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है बिटकॉइन नेटवर्क पे। सपोज आपने मेरे वॉलेट एड्रेस पे एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया। ठीक है। तो अब होगा क्या, इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने में 7 से 10 मिनट लगते हैं। ये वीजा ट्रांजैक्शन की तरह एकदम से प्रोसेस नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। अब होगा क्या कि ये ट्रांजैक्शन दी जाएगी नेटवर्क को कि साहब ये एक नई ट्रांजैक्शन आई है, प्रोसेस करनी है। ठीक है। अब 10,000 नोड्स हैं बिटकॉइन पे नेटवर्क के ऊपर। ठीक है। अब ये 10 के 10,000 नोड्स आपस में लड़ेंगे। अब बिटकॉइन नेटवर्क आप इन सारे नोड्स को एक मैथमेटिकल इक्वेशन देगा। कौन सा नोड सबसे पहले इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा, दैट नोड विल गेट चांस टू प्रोसेस दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है। और इस नोड को उस ट्रांजैक्शन के लिए माइनर नोड बोला जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये वो वाला कंप्यूटर है जो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा। और जैसे ही आप सक्सेसफुली एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर देंगे, आपको नेटवर्क बिटकॉइन देगा। ठीक है जी। और ये जो सप्लाई है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते ही सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक नया बिटकॉइन जनरेट हुआ और नेटवर्क ने उस नेटवर्क नोड को दे दिया। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बिटकॉइन माइनिंग। सेम प्रोसेस का इस्तेमाल इथेरियम नेटवर्क में भी यूज होता है। तो आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर को एक नोड बना लें बिटकॉइन नेटवर्क पे। अगर आपको लगता है नहीं जी बिटकॉइन नेटवर्क बहुत कम रिवॉर्ड्स दे रहा है मेरे को माइनिंग के लिए, तो आप आज की डेट में इथेरियम पे बहुत पैसा बन रहा है लोगों का, तो आप उस कंप्यूटर सिस्टम को ले जाएं इथेरियम नेटवर्क पे और इथेरियम नेटवर्क के अंदर आप इस्तेमाल कीजिए और माइनिंग कीजिए। तो जब आप इथेरियम की कोई भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेंगे, उसके लिए आपको इथेरियम टोकन या ईटीएच बोला जाता है, ईथर मिलेगा। ठीक है। अब जब 21 मिलियन की सप्लाई मार्केट में आ जाएगी, उस दिन there will be a scarcity of bitcoin, क्योंकि अब और कोई नया बिटकॉइन अवेलेबल नहीं है। तो सिमिलर टू गोल्ड, अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें, जो गोल्ड के फीचर्स हैं अगर उनसे कंपेयर करें, तो बिटकॉइन विल आल्सो बी स्कार्स इन द वर्ल्ड। तो साहब अगर हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है कुछ 5 या 10,000 साल की, क्या हम कह सकते हैं कि 90% गोल्ड जितना हमारी खदानों के अंदर था वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है? अब मिलेगा तो 5-7%, 10% मिलेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई में है आज की डेट में। ठीक है।
तो उसी तरीके की एनालॉजी है कि साहब बिटकॉइन की सप्लाई भी 90% मार्केट में है, तो इन द लॉन्ग रन इट विल मेंटेन इट्स वैल्यू, देयरफॉर इट कैन बिकम अ वैल्यू ऑफ स्टोर. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? बिकॉज इसके बाद आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा, विच इज द यूज केसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है. एनी क्वेश्चंस सो फार? सर क्वेश्चन इसमें इसके रिस्पेक्ट में ये है, नेचुरल क्वेश्चन, जैसे आप इथेरियम के बारे में बात कर रहे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि नॉट बनने के लिए लीगैलिटी पर्सपेक्टिव से हम पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, या कोई दूसरा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. और ये फाइनेंशियली कितना वायबल है, और इसके लिए क्या स्किल सेट होगा टू बिकम अ नॉट इन सिस्टम. ओके, तो सर मैं बता देता हूँ. नेटवर्क नोड बनने के लिए, सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो इथेरियम माइनिंग करते हैं. आपको कुछ नहीं करना, आप जाइए नेहरू प्लेस जाइए, एक कंप्यूटर बनवा लीजिए और वहां पे कंप्यूटर बनाने वाले को बोलना कि मेरे को इथेरियम माइनिंग करनी है, तो उसके अंदर वो बहुत हैवी ग्राफिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको ग्राफिक कार्ड्स लगा के देंगे. तकरीबन अगर इथेरियम माइनिंग रिग आपको बनाना है तो 17 लाख रुपए के आसपास का एक अच्छा बढ़िया रिग बनता है. ठीक है, और 8 महीने के करीब लगते हैं आपको टू रिकवर दैट कॉस्ट. उसके बाद जो होगा वो प्रॉफिट है. तो कुछ इस तरीके से काम करता है. बट प्रॉब्लम अभी इथेरियम नेटवर्क के अंदर ये है दैट थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेंट जा रहा हूं मैं. इथेरियम नेटवर्क के ऊपर माइनिंग बंद होने वाली है अगले 6 महीने के अंदर अंदर. तो जो भी ये माइनिंग रिग्स आज की डेट में लोगों के पास पड़े हुए हैं, तो ये किसी और क्रिप्टो करेंसी को चूज करेंगे कि भाई अब यहाँ चले जाओ, यहाँ रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन पे, इथेरियम पे माइनिंग बंद हो रही है. ठीक है, So you want to say that one or the other currency will, new currency will keep on coming. Once Bitcoin is exhausted, then another will come. Or बिटकॉइन so एग्जॉस्ट कैसे होगा? once you are saying na, that once it is crossed 21 million, it will not be mined. New one will not be mined. जी बिल्कुल, सप्लाई नहीं So बढ़ेगी. some new other currency like Ethereum or some other currencies will join in the race. वो So हो that is सकता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है. गोल्ड की रेस सिल्वर से कभी भी नहीं थी ना. गोल्ड एक अलग कमोडिटी है, सिल्वर एक अलग कमोडिटी है, तो गोल्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगा मार्केट में. And my second question is how the rate of the Bitcoin at the end of the day is determined. Like we see in the evening on the headline that today's Bitcoin is this much plus minus. How it is determined? देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड coinmarketcap.com. तो कुछ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का प्रेशर है. जैसे अब एक पर्टिकुलर शेयर का मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर. ठीक है जी, और उस वजह से एवरी मिली सेकेंड आपके प्राइसेस चेंज होते हैं. तो उसी तरीके से बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी, इन सब के अपने रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस है. जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, और ये उन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं. सो देयरफॉर जो बाय एंड सेल ऑर्डर्स हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं 24/7. You want to say apart from the transaction of transferring money from one end to the other end, there is another separate this thing that it works on the exchanges. जी, बिकॉज ये, क्योंकि बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है, एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी होता है, एज अ ट्रेडिंग व्हीकल भी होता है, कि लोग ट्रेड भी करते हैं उसके अंदर. जैसे आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं वैसे आप बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड करते हैं. तो बहुत सारे यूज केसेस हैं जिसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अभी. Okay, thank you. Sir, ठीक है जी. again, जी. sorry to interrupt. No problem. अब जैसे आपने शेयर्स का एग्जांपल दिया था, शेयर का एग्जांपल और बिटकॉइन का करेंसी का थोड़ा मैचअप एग्जांपल मुझे जो नहीं लग रहा प्राइमा फेसी, बिकॉज जब शेयर की बात करते हैं तो शेयर को बैकअप करने के लिए, एटलीस्ट ऑन पेपर तो हम कहते हैं कि शेयर को बैकअप करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं. हाँ, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी एक स्केप्टिसिज्म डिस्कस किया कि साहब बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लोग ये कहते हैं. यस, मैं इसलिए वो ठीक है. कंपेरेबल नहीं लगा मैं मुझे. इस पे वापस आऊंगा. मैं Okay. वापस आऊंगा. आई एम नॉट कंपेयरिंग स्टॉक्स विद क्रिप्टो, बट आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एनालॉजी. बट आई डोंट अग्री विद द पॉइंट दैट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, मैं इस पे जरूर वापस आऊंगा. अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज याद दिला देना. ठीक है, हाँ, मुझे बहुत बिल्कुल. हाँ जी. सब अब शुरू करेंगे हम यूज केसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. तो प्रधान जी ने भी ऑलरेडी बताया कि साहब क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करेंसी की तरह किया जा सकता है. तो एल साल्वाडोर ने डिक्लेयर किया बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर, एंड सितंबर 2021 के अराउंड यूक्रेन आल्सो लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज, स्पेशली बिटकॉइन एंड इथेरियम. ठीक है, तो अभी जो ये वॉर सिचुएशन की हम बात करें साहब, इसमें मोर देन $100 million. इतना परेशान हो जाएंगे लास्ट में, जॉब ढूंढेंगे या फिर छोड़ देंगे. पक्का छोड़. जो एज्ड हैं
हरिनाम जी हो गए। ओके, कैन आई गो ऑन? यस यस। ओके, तो साहब रशिया यूक्रेन की सिचुएशन हमें मालूम है इस वक्त पे, ठीक है? तो लोग बहुत सारे डोनेशंस दे रहे हैं टू यूक्रेन। अब यूक्रेन के पास $100 मिलियन से ज्यादा, तकरीबन 700 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेशंस रिसीव हुई, ठीक है? उन्होंने लीगलाइज किया क्रिप्टो करेंसीज को सो दैट वो उन डोनेशंस को खर्च पाए, ठीक है? तो आज की डेट में उन डोनेशन से जितने आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं, बेसिक नेसेसिटीज है, राशन है, ये सब खरीदा जा रहा है क्योंकि लीगल कर दिया गया क्रिप्टो करेंसीज को देश के अंदर। तो अब जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, यानी कि आज मैं अगर सब्जी लेने जाऊंगा, बिटकॉइन देने की कोशिश करूंगा तो भगा देगा मेरे को वहां से, ठीक है जी? लेकिन यूक्रेन में वो पॉसिबल है, तो सरकार उन क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कर पा रही है टू हेल्प द वॉर इनिशिएटिव, ठीक है? सेकेंड यूज केस की अगर हम बात करें तो साहब 2009 से लेकर आज तक की बिटकॉइन की हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, इस सब की बात करी। 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि 2009 जब हम चले तो बिटकॉइन का विजन क्या था? आपने कोई मेरे को बता सकता है दोबारा से कि बिटकॉइन व्हाइट पेपर के ऊपर हेडलाइन क्या थी, क्या ऑब्जेक्टिव था बिटकॉइन का? सर थर्ड पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन, पीयर टू पीयर कैश नेटवर्क, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ठीक है? तो जो ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जब सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई, ऑब्जेक्टिव सिर्फ करेंसी था। थोड़ा सा छोटा सपना हमने देख रखा था उस वक्त पे, ठीक है? 2014 में इसमें चेंज आया, ठीक है? तो जो 2014 में साहब एक नया नेटवर्क निकल के आया नोन एज इथेरियम। इथेरियम ने बोला कि मैं भी इसी तरीके का एक नेटवर्क बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होगी, ब्लॉकचेन होगा, बट एक एड ऑन है मेरे सिस्टम में, दैट मेरे नेटवर्क के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि साहब आप एक स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ए और बी होते हैं, ठीक है जी? ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ और स्टैम्प पेपर पे कर लिया साइन। अब जो नोटरी है, जो ठप्पा लगा रहा है, जो भी रजिस्ट्रार है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है? तो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस कराने के लिए भी थर्ड पार्टी की जरूरत है। ब्लॉकचेन सिस्टम ने बोला भाई कि हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें सर ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है। Voice is not audible. दिगंत, हाय, कैन यू हियर मी? यस। ये म्यूट कैसे हुआ? आई डोंट हैव या एनीथिंग। नाउ इट इज ऑडिबल। ओके, तो कहाँ पे थे हम? सॉरी, कहाँ तक सुन पाए? लास्ट संकल्प। हाँ, That you're talking of agreement, some agreement. 2014 में व्हाइट पेपर चेंज हुआ था। ओके, नहीं व्हाइट पेपर चेंज नहीं हुआ, एक नया क्रिप्टो करेंसी, एक नया नेटवर्क निकल के आया विच इज नोन एज इथेरियम, ठीक है जी? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोई भी कोडर, कोई भी डेवलपर एक एप्लीकेशन बना सकता है उस नेटवर्क के ऊपर, और वो एप्लीकेशन जब कंप्लीट होकर रन हो गई उसके बाद उस एप्लीकेशन को किसी और चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रन कर सकती है, ठीक है? तो इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस बनी इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के साथ अब थोड़ी सी लिमिटेशन है कि बिटकॉइन का मेजर इस्तेमाल या तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है या करेंसी की तरह हो रहा है। लेकिन जब आप इथेरियम नेटवर्क की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे हम उस पर एप्लीकेशंस बना सकते थे। अब साहब अब तो कुछ भी सोच लो तो हम बनाया जा सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट यूज केस जो निकल के आया उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस का, दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, आल्सो नोन एज डीफाई। तो साहब आज का आपका जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें क्या क्या होता है? बैंकिंग है, ठीक है जी, विच इज लेंडिंग एंड बोरोइंग, और क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है जी, और इंश्योरेंस कंपनीज है। मोटा मोटा तो यही है आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? इथेरियम के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सेम काम कर रहे हैं बट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। तो कंपाउंड इज अ प्रोजेक्ट
जहां पे आप जा सकते हैं, अपना बीटीसी लैंड करिए, ठीक है। अब आपने भाई 2 साल के लिए होल्ड करना है बिटकॉइन को, आप बिटकॉइन को वहां पे दे दो, ब्याज कमाओ उस पे, ठीक है जी। आपको किसी को पे करना है तो अभी उधार पे ले लो और उस पे ब्याज देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो लेंडिंग एंड बोरिंग मार्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बनाई गई इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आप लॉग इन कीजिए कंपाउंड की साइट पे, ठीक है, वहां पे जाइए, आप अपने बीटीसी को वहां पर डिपॉजिट कीजिए और आपको वहां पे इंटरेस्ट आता जाएगा। अब यहां पर आप किसी भी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, और जब आप विड्रॉ करोगे तब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आप बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, जैसे आप एक्सेल के ऊपर इफ एंड बट का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी तरीके के फॉर्मूलाज यूज होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि साहब अगर एक बंदा आए मेरे पास बिटकॉइन जमा कराए तो उसको डिपॉजिट कर लो, और जब विड्रॉ कराए तो कैलकुलेट कर लो कितने दिन उसने हमारे पास रखा, उस हिसाब से इंटरेस्ट के साथ उसको वापस दे दो, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली यूनिस्वैप इज अ प्लेटफॉर्म जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं लाइक बिनांस, एफटीएक्स, वजीरेक्स, ये सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जो आपके प्राइवेट कीज को या टोकन्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इन इन एक्सचेंजेस को कस्टोडियल एक्सचेंज बोला जाता है। यूनिस्वैप साहब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है जी। ये इसमें कोई केवाईसी की जरूरत नहीं होती है एंड इट कीप्स यू अनोनिमस, ठीक है। और इसकी वजह से, अनोनिमिटी की वजह से कुछ इश्यूज भी हैं जिस पे हम वापस आएंगे, ठीक है। एंड द थर्ड इज द नेक्सस म्यूचुअल। तो नेक्सस म्यूचुअल एक इंश्योरेंस प्रोटोकॉल है। अगेन, आपको अगर इंश्योरेंस लेनी है अपने अपने पोर्टफोलियो की, कि साहब कल को हैक हो जाए, रिस्क हो जाए, मेरी मेरी प्राइवेट की गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस आप ले सकते हैं थ्रू नेक्सस म्यूचुअल। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट यूज केस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इज नॉन फंजिबल टोकन्स। तो अब मेरा सवाल ऑडियंस से थोड़ा सा, सब डिजिटली आप कितने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? किसी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस का मेरे को नाम बता सकते हैं आप, जो आप आज की डेट में यूज कर रहे हो? क्रिप्टो को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, पेटीएम, गूगल पे, ओके। क्रेडिट कार्ड, ऐसी कोई सर्विस जिस पे आप पैसे पे कर रहे जूम, जूम, हो? एब्सोल्युटली। कोई सब्सक्रिप्शन? नेटफ्लिक्स। एब्सोल्युटली। और कुछ, कोई डिजिटल प्रोडक्ट आपने कभी खरीदा हो मार्केट से जो कि फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल है? किंडल ई बुक Kindle. खरीदी है किसी ने? yes, Kindle ebook can be considered as स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन? ऑडिबल सब्सक्रिप्शन। ऑडिबल सब्सक्रिप्शन, ये सारे क्या है साहब? ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी दिक्कत है ओनरशिप की, ठीक है। इस टॉपिक को बोला जाता है इल्यूजन ऑफ ओनरशिप। नेटफ्लिक्स की मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूं, ठीक है जी, तो डू आई ओन दीज मूवीज और आई ओनली हैव एक्सेस टू दीज मूवीज? क्या कहना है आपका? access. ठीक है जी। सेम स्पॉटिफाई, ऑडिबल जो आपने एग्जांपल दिए, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है। ई बुक, आप किंडल पे जाके ई बुक लेते हो, आपको एक्सेस मिल रहा है या यू ओन देम? Access. इसमें मुद्दा ये है, कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं कि नहीं साहब आई ओन देम, मैं उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास फिजिकल बुक होती है तो आप उस फिजिकल बुक को बेच सकते हैं, आप उस फिजिकल बुक को अपने दोस्त को दे सकते हैं। किंडल पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो उनके राइट्स जो हैं वो लिमिटेड है। अगर मैं किसी चीज को ओन करता हूं तो मेरे राइट्स लिमिटेड कैसे हो सकते हैं? आई विल हैव 100% फुल राइट ऑन दैट डिजिटल प्रोडक्ट, राइट? तो आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केट में टेक्निकली कोई भी ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है जो आप ओन करते हो, ठीक है। यू ओनली हैव राइट टू एक्सेस। इसी को बोला जाता है इल्यूजन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन का कहना यह है कि दुनिया का कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट उठा लो, वी कैन मेक यू 100% ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट एग्जांपल है डिजिटल आर्ट। तो जो भी पेंटर्स हैं, ठीक है, आज की डेट में लोग सिर्फ फिजिकल पेंटिंग नहीं करते, देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल आर्ट्स, ठीक है। सो बोर्ड एप याच क्लब इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिजिटल आर्ट। तो एक डेवलपर हैं जिन्होंने 10,000 बंदर बनाए, ठीक है जी। ये 10,000 जो थे, क्योंकि 10 हर पर्टिकुलर जेपीईजी इमेज जो है
दैट इज अ नॉन फंजिबल टोकन। जैसे एक क्रिप्टो टोकन होता है, एक बिटकॉइन होता है, उसी तरीके से एक नॉन फंजिबल टोकन क्रिएट किया गया। हर एक बंदर का अपना अलग अलग टोकन क्रिएट किया गया और मार्केट में सप्लाई कर दिया गया। ठीक है जी। आज की डेट में दीज बोर्ड एप्स आर अ पार्ट ऑफ पॉप कल्चर। ठीक है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज लाइक स्नूप डॉग ने लिया, अभी जस्टिन बीबर ने ये एक सिर्फ जेपीजी खरीदे $1.3 मिलियन की। दिस आपके लेफ्ट साइड पे दिस इज पैरिस हिल्टन इन जिमी किमेल शो। तो ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड एप्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो साहब दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉप कल्चर नाउ। ठीक है, तो एनएफटी लेना थोड़ा सा लोग आजकल कूल भी समझते हैं, बट आपको उसका बेस समझना है कि वैल्यू कहां से आती है। ठीक है, तो एनएफटीज का मुद्दा ये है कि नाउ यू ट्रूली ओन दीज डिजिटल एसेट्स। कल तक आप इनको ओन नहीं कर सकते थे। ठीक है, मूविंग ऑन। सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? जी जी श्योर। अब जैसे एक आपने एग्जांपल दिया नेटफ्लिक्स का और ये इसका एनएफटी का। अब व्हेन यू से कि इसे ओन करते हैं, तो ओन तो मैं नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन ओन तो नहीं कहना, मतलब उसका एक्सेस को है मेरे पास। सिंपल सा तो मुद्दा उससे है, कैसे डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस नेटफ्लिक्स कैसे है? आपके राइट्स को खत्म कर सकता है कल चाहे तो। नेटफ्लिक्स कंट्रोल कर सकता है, मतलब तो अब क्यों? आप ओनर नहीं हो। वो कैसे कर सकते हैं? जब मैंने 1 मंथ का पे किया, अगर मैं कुछ मिसयूज किसी तरीके से नहीं कर रहा हूँ तो मेरी वो नहीं कर कंपनी सकता? बैंकरप्ट हो गई, मेरी नेटफ्लिक्स कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मेरा कल से प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। अब फिर हो सकता है। सर हाँ, कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट फिर हो इज सकता है। नेटफ्लिक्स कैन कंट्रोल एवरी डैम थिंग। आज की डेट में नेटफ्लिक्स पे एक पर्टिकुलर मूवी है जो उन्होंने 1983 जो रणवीर सिंह की है वो डाली है, वो कल हटा लेते हैं, मैं लड़ लूंगा उनसे जाके कि नहीं दोबारा लेके आओ। नहीं कर सकता, मैं नहीं तो कर सकता। अगेन डू यू हैव ओनरशिप? नो, यू ओनली हैव एक्सेस। Digant, यहाँ पर मेरे पास ओनरशिप है। जी हाँ जी, हाँ जी संकल्प there is, because of time paucity, I think जी। you should take the questions at last. Now just complete the topic. ओके चलो आई विल मूव ऑन। ठीक है जी। सिमिलरली NFTs can be used to own digital land in the metaverse. तो साहब दिस इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द सैंडबॉक्स, एंड सैंडबॉक्स पे आप लैंड जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, एंड देयर वाज अ ट्रांजैक्शन फॉर $4.3 मिलियन। स्नूप डॉग आल्सो ओन्स अ लैंड ऑन द सैंडबॉक्स, एंड उस लैंड के ऊपर स्नूप डॉग ने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया एंड उस कॉन्सर्ट के पासेस बांटे कि साहब 1000 पासेस है, ठीक है जी, आप इनको खरीदिए और मेटावर्स में मेरी पार्टी में आओ, कॉन्सर्ट है, म्यूजिक शो है। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज म्यूजिक एनएफटीज। तो साहब जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको हमेशा रिकॉर्ड लेबल के पास जाना पड़ता था टू पब्लिश एनी एल्बम। ठीक है, अब वो सिस्टम से के लिए आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आपको अब रिकॉर्ड लेबल के पास नहीं जाना। ऑलरेडी अगर कोई भी सिंगर है, आज अरिजीत सिंह है, तो साहब उनकी अपनी फैन फॉलोशिप है, उनकी कम्युनिटी है, तो उसको टी सीरीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे अपनी एल्बम रिकॉर्ड करे और उनके एनएफटीज क्रिएट कर दे और लोगों को सीधा डायरेक्टली जाके बेचे। ठीक है, सो किंग ऑफ लियोन वाज द फर्स्ट बैंड जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी एल्बम लॉन्च करी थी, एंड दे सोल्ड NFTs of that particular album and generated $2 million from that. ठीक है, मूविंग ऑन। सब ये जो है ना, इस पे आई वुड वांट कि आप थोड़ा रिसर्च करो, और ये बहुत ही कमाल की चीज है। गेमिंग की अगर हम बात करें तो मैं बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी मैं बहुत खेलता हूँ। ठीक है, तो गेमिंग के अंदर भी जो इन गेम एसेट्स हैं, तो कई बारी मुझे पैसे देने पड़ते हैं एक बंदूक खरीदने के लिए, एक हेलमेट खरीदने के लिए, एक आर्मर खरीदने के लिए। ठीक है, अगेन मैं पैसे दे रहा हूँ उसके, बट डू आई ओन देम और आई ओनली हैव एक्सेस टू देम? सो आई ओनली हैव एक्सेस टू देम। कल को बंद हो जाती है, मेरा अकाउंट हैक हो जाता है, मेरा अकाउंट अगर बंद हो जाता है बाय एनी रीजन, आई विल लूज ऑल दोज इन गेम एसेट्स। ठीक है, तो गेमिंग के अंदर अगर आप हर एसेट को एक नॉन फंजिबल टोकन बना दें, तो साहब वो हमेशा ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा। तो एक बंदूक मैंने एक गेम पे जाके खरीदी, तो कल को वो गेम बंद भी हो जाती है, आई कैन यूज इट इन एनी अदर गेम। ठीक है, सो एक्सी इन्फिनिटी साहब एक ऐसी गेम है, ठीक है, which pays you in cryptocurrency to play। यानी कि आप उस गेम को खेलते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स में क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्ले टू अर्न और P2E। ठीक है, सब फिलिपिन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब्स छोड़ी हैं जस्ट टू प्ले एक्सी इन्फिनिटी, बिकॉज इट पेज मोर देन योर रेगुलर जॉब।
ठीक है, तो इस पे जितना आप रिसर्च करें, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो आपको आगे आने वाली इंडस्ट्रीज में दिखने वाली है, कि बहुत सारी गेम्स आएंगी इन द मेटावर्स, जहां पर आप जाएंगे, आप गेम खेलेंगे सारा दिन बैठ के, और आप वो आपका फुल टाइम जॉब है, जस्ट प्लेइंग द गेम। ठीक है, मूविंग ऑन। दिस इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो अगर हम लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे लुई वुइटन आपके सामने एक लोगो है, तो साहब लुई वुइटन प्रीमियम लग्जूरियस बैग्स बनाता है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे नकली बैग्स मार्केट में अवेलेबल है जो सिर्फ लुई वुइटन का लोगो चिपका के दे देते हैं। ठीक है, तो ये कंसर्न है बहुत बड़ा लुई वुइटन के लिए। तो लुई वुइटन क्या करता है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिजाइन करता है कि साहब मेरा कस्टमर जब भी बैग खरीदे तो वो कनेक्ट कर पाए मेरे से और कंफर्म कर पाए कि मैंने जो बैग लिया है ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कस्टमर इंटरैक्ट कर पाए टू द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, जैसे लुई वुइटन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर कंफर्म कर पाए कि उसने जो बैग खरीदा है वो सही है या नहीं है। वॉलमार्ट अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चाहता है कि साहब अगर मेरा कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और 2 दिन लगते हैं उसको पहुंचने में, क्या मैं उसको 1.5 दिन कर सकता हूँ, क्या मैं उसको 1 दिन कर सकता हूँ? तो कहां पर उस सप्लाई चेन के अंदर कहां प्रॉब्लम आ रही है, ये सप्लाई चेन सॉल्यूशंस होते हैं। तो वीई चेन इसका क्रिप्टो टोकन वेट है। ठीक है, ये लुई वुइटन के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने ही डेवलप किया है ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, इथेरियम के ऊपर ही। ठीक है, सो दे प्रोवाइड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, लुई वुइटन एक एग्जांपल है, BMW इसका एक एग्जांपल है, रेनो, वॉलमार्ट, PwC इज आल्सो टेकिंग सर्विसेज ऑफ वी चेन। ठीक है, सो PwC की अपनी सप्लाई चेन एडवाइजरी एक अपना लेग है, जहां पे दे एडवाइज देयर क्लाइंट्स टू हाउ टू डेवलप अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और उसके लिए वो वी चेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। सोशल मीडिया सब, अब डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हमारा सोशल मीडिया जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल्ड है, आधा फेसबुक के पास है, आधा गूगल के पास है, बाकी अमेजोन के पास है। ठीक है जी, तो डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं जो अब निकल के आ रही हैं। चिंगारी एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, तो इट्स अ ब्लॉकचेन वर्जन ऑफ टिकटॉक। ठीक है, एंड सलमान खान इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट। लास्टली, जो द नेक्स्ट बिग थिंग इस क्रिप्टो सेक्टर के अंदर होगी, दैट विल बी वेब 3.0। वेब 3.0 एग्जैक्टली वही है कि साहब आज की डेट में इंटरनेट जो है वो बहुत बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स कंट्रोल करते हैं। गूगल, फेसबुक आर वन ऑफ देम, Amazon इज द थर्ड। तो इन तीन को मिला लो तो 90% दुनिया का डेटा इनके पास ही है। ठीक है, so blockchain enthusiasts want to create a decentralized internet, and that decentralized internet will be known as web 3.0. And the last use case of cryptocurrencies can be investments and as a trading vehicle. Takeaway, सब टेकअवे सिंपल सा ये है कि बिटकॉइन सिर्फ एक शुरुआत है। ब्लॉकचेन का एक पहला प्रोडक्ट है बिटकॉइन, और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ आप क्या कर सकते हैं वो लिमिटलेस है, एंड वो मुझे भी नहीं पता है। मैंने तो आपको सिर्फ बताया आज क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आने वाले 2 साल में और क्या नए प्रोडक्ट्स निकल के आ सकते हैं, यू नेवर नो। ठीक है, एंड यस, बिटकॉइन प्रॉब्लम फ्री नहीं है। हर नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आती है, एंड आई विल कम बैक टू देम एज वेल। लास्टली, it's again personal opinion that I think that cryptocurrencies are our generation's chance to make a life changing wealth. ठीक है, NFA and DYOR। तो मेरे कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं जहाँ पे मेरे को कोई पूछता है ना कि कौन से क्रिप्टो टोकन लेने चाहिए ये बता दो, तो मैं हर मैसेज के नीचे लिख के देता हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। In case you have any questions, I'm all for it. So thank you very much, Digant. Very informative presentation, and plus it gave a very broad view about the blockchain technology, I think, per se, not only Bitcoin and cryptocurrency. So there are some questions, but before asking those questions before me asking those questions, I would like to ask you, have you invested in Bitcoin? Yeah, absolutely. Cryptocurrency. Yeah.
Okay, Absolutely. great. So your advice is that everyone should invest. No, my advice is not that, and it Okay. will never be. Do your own research. As simple as that. जब तक आप टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकते, don't invest in that. Okay. First learn. So one of my relatives has invested in it, and he is very upbeat about the blockchain technology. He feels that people are not ready to accept this technology, and that's why they are shying away from investing in this technology. बट ये आई थिंक ये तो हर टेक्नोलॉजी के साथ रहा ना. आप 1990 के आर्टिकल्स उठा के देख लो, लोग क्या बोलते थे इंटरनेट के बारे में. इंटरनेट वाज द न्यू डीमन. Okay, Yes. go on with your question. Sorry. Yes. So that's why he is investing, and he feels that a time will come when there will be a big boon in the investment. So I'm just giving a background basically, but the question is, which a lot of our members have asked me. Sure. Should we invest? This is the first question, which you are saying yes, we should. Step Do one, you you should learn first. You should get educated first about cryptocurrencies. If you don't have, again, मैं आज भी कई ऐसे investors या traders को जानता हूँ who don't have any clue what cryptocurrencies are. That's very risky. वहाँ पे आप अपना बहुत सारा पैसा जला लेंगे. ठीक है? तो first learn, then invest. Yes. And then second question is, what are the risks associated with it, and how should we do the research? How should we go on about doing the research? Sir, research simple hai. I'm CoinSutra is the platform for the research, so you can join our newsletter, you can see the website and the YouTube channel as well. रिस्क क्या है? रिस्क साहब 2-3 है. तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का इकोसिस्टम 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. एक पार्ट है सेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज्ड का मतलब ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो कि वजीर एक्स, कॉइन DCX, बिनांस, यहाँ पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं. दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड. जब आप सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के अंदर जाते हैं तो सेंट्रल एक्सचेंज अगर हैक हो जाता है तो आपको समझना ये है कि आपके जो बिटकॉइन है वो बिनांस के पास है, आपके पास नहीं है. ठीक है? तो अगर कल को बिनांस हैक हो जाता है, यू कैन लूज ऑल योर फंड्स. ठीक है? ऐसा पास्ट में माउंट गॉक्स, एक अगर आप रिसर्च करना चाहें mt.gox, माउंट गॉक्स का एक हैक है साहब जो हुआ था पास्ट में, लाइक 2011-12 के अराउंड. पीपल लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. तो उसका ध्यान आपको रखना है. तो सेकंड इज द डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, जो मैंने यूनिस्वैप का आपको एग्जांपल दिया था. अगर आप वहां से लेते हैं तो आपके पास रहता है आपके क्रिप्टो करेंसी, आपकी प्राइवेट कीज. तो इन दैट केस आप हार्डवेयर वॉलेट्स का यूज कर सकते हो टू सिक्योर दोस प्राइवेट कीज. तो ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को यूज करोगे तो वहां पर हैक नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे कस्टडी आपके पास है. अब आपने अगर की लूज कर दी तो तब भी तो अल्टीमेटली नुकसान हो गया ना. तो दोनों सिचुएशन में रिस्क है, वहां पे अपने अपने प्रिकॉशंस हैं. Okay. Then one question is, what are the instruments to be used to analyze working and future growth of tokens and NFTs? तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्कशन. मतलब मैं आई कैन जस्ट ट्राई टू टेल इट इन 2 लाइंस. लाइक जिस तरीके से आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कुछ उसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल रिसर्च किया जाता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का. लाइक अगर आप कॉइनसूत्रा की वेबसाइट पे जाएंगे, देन आई हैव posted a number of research reports, fundamental research reports on many projects to identify whether they are investable or not. Obviously अब यहाँ पर situation क्या है कि यहाँ पे financial books नहीं है to do that fundamental analysis, तो उसका fundamental research analysis process थोड़ा सा change हो जाता है. ठीक है? But कहीं ना कहीं system वही है कि आप किसी भी धंधे की valuation कैसे करते हैं, वो valuation mechanism हमेशा वैसा ही रहता है. Okay, great. Then last question. Sure. Can Bitcoin be used for illegal activities? Absolutely, it has been used in past for illegal activities. एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं सिल्क रूट. तो साहब एक डेवलपर था, उसने क्या किया कि उसने सिल्क रूट वेबसाइट एक नाम से बनाई यूएस के अंदर, एंड कोई भी आप वहां पर किसी भी इलीगल ड्रग का ट्रेड कर सकते थे बिटकॉइन देकर. आप वहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशंस का ट्रेड कर सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे वहां पे. ठीक है? बट यही जब ये लोग कहते हैं कि
ये तो इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, इसलिए बैन कर देना चाहिए। तो माय सिंपल क्वेश्चन इज, सब गाड़ियां जब लॉन्च हुई थी, लाइक आई डोंट नो, शायद 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो जब लोग गाड़ियां चलाते थे और हाई स्पीड उस टाइम थी, लाइक 50-60 वाज अ वेरी हाई स्पीड जो लोगों ने देखी नहीं थी, क्या गाड़ियों से एक्सीडेंट हो सकते थे या आज भी हो सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल हो सकते हैं, राइट? तो क्या इस वजह से गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए? तो आपको हमेशा एक कॉस्ट और बेनिफिट सिचुएशन देखना है कि यूज केसेस वर्सेस उसकी कॉस्ट, और अगर आप उन गाड़ियों के इस्तेमाल को रेगुलेट करें तो उस रिस्क को, उस कॉस्ट को कम किया जा सकता है। ठीक है? तो सिंपल सी बात यह है कि जो इलीगल एक्टिविटीज हुई इन द पास्ट, उसका सोल्यूशन भी निकला कि जो लोग उस सिल्क रूट वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, वो आईपी एड्रेसेस उनके ट्रैक हो गए, वो लोग पकड़े गए, और वो बंदा भी जेल होके आया, शायद 7 या 8 साल की जेल हुई। तो वी वर एबल टू पनिश द पीपल हु वर डूइंग दीज इलीगल एक्टिविटीज, राइट? तो अगर आपको सोल्यूशन मिल गया उस एक नेगेटिव साइड का, तो यूज केसेस को आप तो कभी कभी भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से। That's my answer for that. Okay. Vadvaji, I like to answer this question also. Sure. Yes, sure sir, sure. देखिए, बेसिकली ऐसा होता है कि जैसा कि दिगंत जी ने बताया, आप दो तरीके से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू में जब आप कर रहे हैं बेसिकली, तो दे विल एंश्योर कि द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इज डन, so they will take your all your documents, even if they will manage your all the crypto coins etc, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, so you can identify कि किसके पास कितना है, so that data can be available with the crypto exchanges. But And another point is private wallets. जब आप प्राइवेट वैलेट के थ्रू में करते हैं तो उसमें देयर आर, यू कैन मास्क योर इंटरनेट। जो हमारा विजिबल इंटरनेट है बेसिकली, जिसमें हम लोग अभी काम करते हैं, दैट इज ओनली द 5-10% ऑफ द टोटल इंटरनेट। बेसिकली जो मास्क पोर्शन है, दैट इज हिडन पोर्शन, दैट इज आल्सो नोन एज, अगर आप रिसर्च करने Dark जाए web. तो देयर इज नोन एज डार्क नेट, डार्क वेब। हाँ, तो उसके लिए देयर आर सेपरेट सेट ऑफ ब्राउजर्स आर देयर। इवन आपका जो करंट ब्राउजर्स है, गूगल क्रोम ले लीजिए या फायरफॉक्स ले लीजिए, यू कैन नॉट एक्सेस दैट पोर्शन ऑफ नेटवर्क या इंटरनेट with your current browser. There is separate browser is there, Tor browser is there, उसके थ्रू में आप जा सकते हैं। अगर आपने मास्किंग कर लिया यहाँ से, बिकॉज इट इज ए पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो आप ये ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर सकते कि किसने किसको दिया है। एंड इफ यू परचेज समथिंग इलीगल या इलीगल एक्टिविटीज में आप इन तीनों को, चारों को कंबाइन हो, तो दिट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटरी कंसर्न। दैट रूट कैन बी यूज्ड फॉर हवाला आल्सो, इलीगल परचेज ऑफ, जैसा इन्होंने कहा सिल्क रूट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द ड्रग। आप इलीगल वेपन्स को ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें। इफ एनीबडी नो अबाउट द डार्क वेब में तो देयर इज, इट इज सेड एक्चुअली, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट आई डोंट नो, आप उसमें हिटमैन को भी हायर कर सकते हैं। इट इज सेड all type of illegal activities are done through dark web. So that is one of the concerns. So cryptocurrency as such, if that anonymity part is removed, then there is no issues. Some portion which is anonymous, it is difficult to track. If it is anonymous and go to anonymous, then it is difficult to track. That is the only thing. Yeah. सर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। ये जो आरबीआई के कंसर्न्स हैं, ये बहुत जेन्युइन है और बहुत लेजिट है। ठीक है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा इशू है कि साहब आप यहाँ से क्रिप्टो लेके गए और आपने बाहर किसी को पैसा दे दिया, तो एक तरीके से वो हवाला ही हुआ। ठीक है, तो एज अ सॉल्यूशन टू दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज एन एक्सचेंज कॉल्ड वॉल्ड। ठीक है, तो वॉल्ड क्या करता है, उसका सिंपल रेगुलेशन ये है कि आप मेरे एक्सचेंज के अंदर पैसा जमा कराइए, आप यहां से विड्रॉ सिर्फ आईएनआर फॉर्म में कर सकते हैं, आप यहां से किसी और एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी लेकर नहीं जा सकते। तो अगर आप वो आउटफ्लो बंद कर देते हैं तो वो हवाला का सिस्टम खत्म हो गया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह ही यूज करना है क्रिप्टो को, तो आप आईएनआर जमा कराइए, आप और विड्रॉ करना है तो भी आईएनआर में कीजिए। ठीक है, सिमिलरली मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जिनको मैं जानता हूं, ठीक है जी, उनके पास केवाईसी रेगुलेशंस हैं कंप्लीट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस है जिसके थ्रू वो आपका केवाईसी करते हैं। थर्डली, एक और जो है, जो आपने प्राइवेट वॉलेट्स की बात करी, मोस्ट प्रोबब्ली जो हमें नजर भी आ रहा है कि फ्यूचर में होगा कि प्राइवेट वॉलेट्स कैन और शुड बी बैंड।
in future अगर ये concern RBI का है तो. So the thing is कि अगर आप regulate कर लेते हैं system को, then system can sustain. Agreed. मैं भी exactly यही कहना चाहता हूँ. जो भी आपका जो exchanges के through में हो रहा है, that is they are following the know your customers all procedures. But the issues is only the private wallets. अगर हम उस चीज को regulate कर लेते हैं, then I think there will not be more issues. Yeah, please. So I think if anyone has any questions from the audience, we'll take 2 questions because time paucity, and post that it will be a vote of thanks. I think we can have a vote of thanks now because it was a very energetic. Bajwa I like to. अच्छा. Suraj Pradhan sir, please. दिगंत जी ने भी एक चीज कहा, जैसे कि काफी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि शुड आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो और नॉट. तो जो दिगंत जी का जो ओपिनियन है, मेरा भी वही ओपिनियन है. इट इज स्टिल अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज स्टिल इन इन्फेंसी. अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है. इट इज स्टिल टू बी स्टेबलाइज. और सबसे बड़ा इशू है कि इसमें जो वॉलेटिलिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. कुछ समय बाद इट मे सेटल. तो अभी अगर somebody want to invest, there are options are there, but you have to do your own research. I cannot say कि you should invest or you should not invest. But अगर आप देखें, अगर किसी ने पिछले फरवरी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा और उसने दिसंबर में अगर उसे इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लिया होगा 2021 में, so 30,000 से अराउंड इट गोस टू 65,000. और किसी ने अगर 65,000 में इन्वेस्ट किया होगा, नाउ इट इज कमिंग डाउन टू 40,000. तो आपको ये चीज भी देखना है कि आप कहां तक वो ले सकते हैं. एंड एज ऑलवेज, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो को अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप कितना पोर्शन इसमें रिस्क ओरिएंटेड में डिवोट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके लिए भी सबसे पहला चीज है कि आप कितना स्पेयर कर सकते हैं. डोंट गो फॉर, काफी लोग है कि जैसे कि नहीं एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके कि नहीं कुछ समय में ये शायद डबल हो जाए, लोन लेके इन्वेस्ट करना, दैट इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी. बट अगेन द एडवाइस इज डू योर ओन रिसर्च. There are plenty of options available. Cryptocurrency is only the tip of iceberg. NFT is there. Metaverse जो concept है उस पे भी आप research कीजिए, उसमें भी there are a lot of business opportunities are there. So this blockchain technology is keep on evolving. There are regulatory concerns are there that will be addressed by regularity sooner or later. But you do your own research. और एक और चीज है कि there are no quick money is there. That you have to remember. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Shri Navneet Kumar Jain ji to give a formal vote of thanks. He is a practicing cost accountant and an IP professional, and he was in the past regional council member of the NIRC of the Institute of Cost Accountants of India. And I'm also thankful to the Merit chapter for helping us to jointly organize today's program. Thank you, Sankalp ji. Thanks a lot. I would like to thank Surya Pradhan sir and Digant sir for, you can say, giving this wonderful presentation. It was like that if I somehow I had to miss 4-5 minutes of the session, I was wondering that how much I have missed practically. Each and every sentence, each and everything was going into our heads like anything, because this is a new subject practically. No doubt for the last many years these things are there, but as a professional we have not gone into these details earlier. So sir, it was really a very, very good session wherein we have learned a lot. Let me tell you frankly, if I talk about myself only, I have learned a lot. That is the only thing. And I also I can see that many of our members were raising very good queries and they have also learned a lot. Thanks to Dinesh ji and Sankalp ji for organizing this session. And one thing which I could see that specifically major thing which has come into picture, which has been spoken by the speakers, that is research.
research and research practically. And let me tell you, there is no alternative to research. And until unless we go in for a research, because if anybody has to put in his hard-earned money, until unless he digs into the details and straightway puts his money there, then he should not blame anybody that, okay, he has lost the money. This is very much important message which has been conveyed by both the speakers as well as Sankalpji also. And this is very much required. So apart from that, Surajji has already conveyed that regulators will definitely come into picture. That is what we have already seen. Though the government has already conveyed that something with regard to it might come a little bit later, but yes, definitely regulators will come into picture. They will have certain controls sooner or later. But yes, as a professional, we should keep on doing our research. With that, I conclude my vote of thanks, and thanks to all the participants who were here since long and were attending this session. Thank you, Sankalpji. Over to you. Thank you so much. Thank you, Suraj Pradhanji. Thank you, Digant Chadha-ji, for the presentation and wonderful inputs. I think all the members who have joined today have been greatly benefited. And also, as professionals, we are always indulged into jama ghata mein lage rehte hain. कभी कभार हमें बाहर की भी दुनिया देख लेनी चाहिए. So today we got a very brightening perspective, especially when the most interesting thing for me was that the whole Philippines population has started into gaming and money. So this was the takeaway for me, that how the world is changing. So once again, I'm thankful to the learned faculty and the members who have joined today. I now formally conclude the session and we'll close. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you.